سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کا تحریری فیصلہ جاری 53 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے تحریر کیا۔ جسٹس یحییٰ افریدی کا اختلافی اور جسٹس منصور علی شاہ کا اضافی نوٹ بھی تفصیلی فیصلے میں شامل۔ سیاستدانوں کی تاحیات نااہلی کا سپریم کورٹ کا فیصلہ ختم کیا جاتا ہے۔ سپریم کورٹ نے سمیع اللہ بلوچ کیس میں تاحیات نااہلی کا ڈکلیریشن دے کر آئین بدلنے کی کوشش کی۔ الیکشن ایکٹ میں ترامیم کے بعد نااہلی کی مدت 5 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی۔ آرٹیکل 62(1)(f) میں تاحیات نااہلی کا کہیں ذکر نہیں۔ تاحیات نااہلی انتخابات لڑنے اور عوام کے ووٹ کے حق سے متصادم ہے۔ سابق جج عمر عطا بندیال نے سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ لکھا اور خود فیصلے کی نفی بھی کی۔ فیصلے کا متن: آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت نااہلی مستقل یا تاحیات نہیں، نااہلی کورٹ آف لا کی ڈکلیریشن تک محدود ہے۔ سپریم کورٹ کا سمیع اللہ بلوچ کیس کا فیصلہ درست تھا۔ جسٹس یحییٰ افریدی کا اختلافی نوٹ۔ وفاق میں حکومت سازی کے لیے 2 بڑی جماعتوں کی ایک اور بیٹھک بے نتیجہ ختم۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے رابطہ کمیٹیوں کا 5واں اجلاس۔ دونوں جماعتوں نے شراکت اقتدار کے لیے معاہدے کا مسودہ تیار کر لیا۔ سفارشات پر پارٹی کی عادت سے مشاورت کا فیصلہ۔ پیپلز پارٹی وفد نے آصف زرداری کو مسودہ پیش کر دیا۔ سابق صدر کی جانب سے گرین سگنل ملنے کا انتظار۔ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی رابطہ کمیٹیوں میں آج پھر اجلاس ہوگا۔ دونوں جماعتوں میں پاور شیئرنگ معاہدے ہونے کا قوی امکان ہے۔ بات چیت مثبت انداز میں جاری ہے۔ آج دوبارہ نشست ہوگی۔ کابینہ میں پیپلز پارٹی کی شمولیت کے حوالے سے کچھ چیزیں پہلے سے طے شدہ ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ کی غیر رسمی گفتگو۔ نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان بھی ملاقات کا جلد امکان۔ قائد مسلم لیگ نون کے مری میں ڈیرے 1 ہفتہ قیام کریں گے۔ نواز شریف حکومت سازی کے لیے دیگر سیاسی جماعتوں کے سربراہان سے بھی ملیں گے۔ میرا مشورہ پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں صاحب کو یہ ہوگا کہ اس اقتدار سے دور رہیں۔ الیکشن کافی متنازع بن گیا، جو حکومت سازی ہوگی وہ بھی متنازع ہوگی، اس لیے میں نہیں سمجھتا حکومت سازی کوئی حل ہے ان معاملات کا۔ آج جو حکومت بنے گی اس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ مسائل کا مقابلہ کر سکے، جو چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کر سکے۔ نہ صلاحیت ہے اور نہ مینڈیٹ ہے، یہ حکومت چلنے والے نہیں ہیں۔ اس لیے آج کچھ اور راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ آج سب کو ذرا اقتدار کی کرسیاں ایک طرف کر کے ملک کے معاملات کو دیکھیں، اس کا حل تلاش کریں۔ میرا میاں صاحب کو مشورہ ہوگا حکومت سے دور رہیں گے۔ الیکشن متنازع ہو گئے ہیں، جو حکومت بنے گی اس میں صلاحیت نہیں ہوگی وہ معاملہ حل کر سکے۔ 16 مہینے ایک ناکام حکومت رہی، اب مسائل مزید بڑھ گئے ہیں۔ کرسیوں کو چھوڑ دیں اور ساری جماعتیں مل کر کوئی حل نکالیں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی دنیا نیوز کے پروگرام دنیا کا عمران خان کے ساتھ میں گفتگو۔ نون لیگ حکومت بنانے جا رہی ہے، ہم ساتھ ہیں۔ کابینہ میں شامل ہونے کے معاملے پر کوئی ڈیڈ لاک نہیں۔ کمیٹی کے ایجنڈے میں یہ نہیں تھا کہ ہم کابینہ کا حصہ ہوں گے۔ آصف زرداری کی صدارت کے لیے نون لیگ سے ووٹ مانگیں گے۔ حکومت سازی میں سوچ سمجھ کر آگے بڑھنے والا عمل ہے۔ ابھی 8-9 دن باقی ہیں، سارا معاملہ سوچ سمجھ کر طے کریں گے۔ قمر زمان قاہرہ کی دنیا نیوز سے گفتگو۔ میجورٹی نہیں ہے، ہم نے مسلم لیگ کو کہہ دیا۔ زرداری صاحب نے باقاعدہ سب جماعتوں کی کانفرنس ہوئی، اس میں کہا، بلاول صاحب نے اپنی سی کے بعد کہا کہ ہم مسلم لیگ کو آفر کرتے ہیں وہ گورنمنٹ بنائیں۔ گورنمنٹ میں کیسے چلنا ہے، کیا ہونا چاہیے تاکہ سموتھ سیلنگ ہو سکے، اس کے لیے باتیں ہو رہی ہیں۔ ہمارا کیبنٹ میں نہ آنا وجہ نزاع ہے ہی نہیں۔ یہ جو حکومت سازی ہے اس میں بڑا سوچ سمجھ کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ کل آنے والے ہم کیونکہ متصادہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ کے آئے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے اب کیبنٹ میں نہیں بیٹھنا۔ ان کی خواہش ہے کہ وہ گورنمنٹ آف یکسوئی کے ساتھ کرے، بڑا اچھا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلے کچھ چیزیں طے ہو جائیں۔ ایم کیو ایم کی حکومت سازی میں مکمل ساتھ دینے کی یقین دہانی۔ متحدہ نے حکومت میں شامل ہونے کے لیے نون لیگ سے 3 نکاتی آئینی ترامیم پر حمایت بھی مانگ لی۔ ایم کیو ایم مذاکراتی کمیٹی کی نون لیگ کے وفد سے ملاقات۔ گورنر کامران ٹیسوری، مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار شامل۔ دونوں جماعتوں کا حکومت سازی سے متعلق بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق۔ درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مشترکہ ایک بند عملی بنانے سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ ہم حکومت سازی کے مشکل مرحلے میں ساتھ ہیں، ہم نے اپنی حمایت کی یقین دہانی کروا دی ہے۔ کامران ٹیسوری کی گفتگو۔ تحریک انصاف کا سنی اتحاد کونسل سے پارلیمانی اتحاد کا اعلان۔ وفاق خیبر پختونخوا پنجاب میں اتحاد کا فیصلہ۔
पी टी आई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करेंगे। पी टी आई MWM और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इत्तेहाद का फैसला इत्तफाक राय से किया गया। ये इक़दाम मखसूस नशिस्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त करेंगे कि हमें मखसूस नशिस्तें अलॉट की जाएँ। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। पी टी आई के साथ धांधली नहीं धांधला हुआ। तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली में 180 सीटें हैं। हमारे 80 से ज़ायद साथियों का धांधली के ज़रिए फॉर्म 47 तब्दील किया गया। हम चाहते हैं कि पूरी कौम मुत्तहिद हो। हम किसी किस्म की फ़िरका वारियत नहीं चाहते। MQM ने तहरीक इंसाफ के मैंडेट पर डाका डाला है। उमर अयूब के इल्ज़ामात। PTI के 50 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल। नोटिफिकेशन जारी। चेयरमैन हामिद रज़ा ने इलेक्शन कमीशन को भी शमूलियत से आगाह कर दिया। ख़वातीन की मखसूस नशिस्तों का मामला देख रहे हैं। अवाम ने मैंडेट दिया, अब तौहीन नहीं होने देंगे। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रज़ा की गुफ्तगू। PTI की दीगर जमातों से भी मेल मुलाकातें। PTI वफ्द की JUI शरानी ग्रुप से मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत। उन तमाम जमातों से बात कर रहे हैं जिनको इलेक्शन में तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हमारा मुतालबा है फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज जारी किए जाएँ। कमिश्नर रावलपिंडी के बयानात की इंक्वायरी होनी चाहिए। तमाम फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए। असद कैसर की शरानी ग्रुप के रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। अगले चंद दिनों में PTI के लिए मज़ीद सीटें आएंगी। PTI वफाक और चारों सूबों में भी हुकूमत बनाएगी। उमर अयूब पुरअज़्म। हमारे अलावा जो भी वज़ीर आज़म बना वो जाली होगा। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ के शाना बशाना खड़े रहेंगे। मौलाना गुल नसीब खान की यकीन दहानी। मुस्लिम लीग नून के लिए परेशानी। इस्लामाबाद से कामयाबी। तीनों अरकान कौमी असम्बली के नोटिफिकेशन मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने NA 47 से तारिक फजल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। NA 48 से राजा खुरम नवाज और NA 46 से अंजुम अकील की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी मुअत्तल। इलेक्शन कमीशन ने तीनों लीगी उम्मीदवारों की कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया था। मुस्लिम लीग नून को कौमी और पंजाब असम्बली की मजीद एक सीट मिल गई। NA 12 कोहिस्तान से आज़ाद रुकन मोहम्मद इदरीस और PP 242 से काशिफ नवीद नून लीग में शामिल। दोनों नौ मुंतखब अरकान की शहबाज शरीफ से मुलाकातें। कायद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। पाकिस्तान को मुआशी खतरात से बचाना हम सब की इज्तिमाई जिम्मेदारी है। अवामी मैंडेट को तस्लीम करते हुए मसाइल के हल की इज्तिमाई सोच दरकार है। ताउन और बर्दाश्त के कौमी जज्बे से ही मसाइल का मुकाबला किया जा सकता है। मुकाबला इलेक्शन में था, अब मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को दरपेश मसाइल का मुकाबला करना होगा। शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आम इंतखाबात में धांधली का शोर। PTI का सेनेट इजलास में एहतजाज। इलेक्शन चोरी नामंजूर के नारे। PTI अरकान का पोस्टर्स लेकर चेयरमैन के डाइस के सामने एहतजाज। नेशनल पार्टी JUI फे के अरकान एहतजाज में शामिल। मेंबरान हट जाएं, अपनी नशिस्तों पर बैठें। चेयरमैन सेनेट की हिदायत। सेनेटर अली जफर ने कहा कि अवाम का मैंडेट चोरी किया गया। चेयरमैन सेनेट का इंतखाबात पर बहस कराने का ऐलान। इंतखाबात में धांधली के इल्ज़ामात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का इजलास आज सुबह 10 बजे दोबारा तलब। इंक्वायरी कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के तमाम रिटर्निंग अफसरान को भी आज बुला लिया। इंक्वायरी कमेटी के सरबराह मेंबर इलेक्शन कमीशन निसात दुरानी ROs के बयान कलमबंद करेंगे। DROs के बयानात को इंक्वायरी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया जाएगा। 6 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान ने साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान के तहरीरी जवाबात जमा करा दिए गए। कमेटी ने लियाकत अली चट्ठा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की ट्रांसक्रिप्ट के लिए पैमरा को खत लिख दिया। जाली बैलेट पेपर्स का नया ड्रामा रचाया जा रहा है। जाली बैलेट पेपर्स की फेक न्यूज़ PTI के सोशल मीडिया अकाउंट से फैलाई गई। मुसलसल फसाद फैलाया जा रहा है। धांधली के इल्ज़ामात लगाना एक जमात का पुराना वतीरा है। 2018 में जीतने के बाद RTS पर इस जमात ने शोर नहीं मचाया। अली अमीन गंडापुर अपनी तरफ से वज़ीर आला बने हुए हैं। रहनुमा नून लीग अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाक में खैरात नहीं, अपना हिस्सा मांगेंगे। साडा हक इत्थे रख, ये मेरा नारा है। सूबे में मुआशी बहरान ख़त्म करने के लिए इक़दाम करेंगे। पार्टी शमूलियत के लिए लीगल टीम बनी है, वो मामला देख रही है। हतमी फैसला बानी PTI करेंगे। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की पेशावर हाई कोर्ट में गुफ्तगू। अदालत ने अली अमीन गंडापुर की हिफाजती ज़मानत मंजूर कर ली। सेनेटर फैसल जावेद की भी राहदारी ज़मानत मंजूर।
पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन मुस्लिम लीग नून ने पंजाब की पार्लिमानी पार्टी का इजलास 21 फरवरी को तलब कर लिया। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज इजलास की सदारत करेंगी। पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी। नई हुकूमत की तश्कील के लिए पंजाब असम्बली का इजलास फरवरी के आखिरी हफ्ते में तलब करने का फैसला। पंजाब असम्बली का इजलास 29 फरवरी से तलब। असम्बली सेक्रेटरीट ने इजलास की तैयारी मुकम्मल कर ली। इजलास में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। वज़ीर आज़म का रिटर्निंग अफसरान की ट्रॉलिंग करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का ऐलान। अवाम ने 8 फरवरी को वाज़ेह मैंडेट दिया है। पुरतशद्दुद ट्रैक रिकॉर्ड वाले कुछ अनासर सरकारी मुलाजमीन को ब्लैकमेल और दबाव डाल रहे हैं ताकि अफसरान अपनी वफादारियाँ रियासत पाकिस्तान से मुतशद्दद ग्रोह में तब्दील कर दें। रियासत पाकिस्तान अपने आइनी फ़राइज़ की अंजाम दही में सरकारी मुलाजमीन का दिफा करेगी। हुकूमत पुरतशद्दुद ट्रोलर्स के खिलाफ कार्रवाई करके मिसाली सज़ा यकीनी बनाएगी। अनवारुल हक काकड़ का बयान। सदर ममलिकत का अवामी मैंडेट का एहतराम करने की ज़रूरत पर जोर। अवामी मैंडेट का एहतराम सियासी शमूलियत यकीनी बनाना नागज़ीर है। करोड़ों नौजवान वोटर्स की जानिब से जमहूरी निज़ाम पर पुरएतमाद का इजहार काबिल तहसीन है। निज़ाम पर नौजवानों का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ तो ये मुल्की मफाद में नहीं होगा। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए इंतखाबी अमल में बेहतरी लाई जा सकती थी। अफसोस के ज़ाती मफादात की वजह से आई वोटिंग और वोटिंग मशीन मुतारिफ नहीं करवाई जा सकी। डॉक्टर आरिफ अलवी का होस्टिंग बिजनेस नेट 2024 के तीसरे एडिशन से खिताब। चीन के इंतखाबात के कामयाब इनेकाद पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। पाकिस्तान में आम इंतखाबात मुस्तहकम और हमवार तरीके से मुनक़्क़द किए गए। पाकिस्तान हमारा करीबी दोस्त और हमसाया मुल्क है। चीन पाकिस्तानी अवाम के इंतखाब का मुकम्मल एहतराम करता है। पाकिस्तान में नई हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातें इंतखाबात के बाद सियासी यकजहती के लिए मिलकर काम करें। दोनों ममालिक के अवाम के फ़ायदे के लिए नया दौर शुरू किया जाएगा। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा। इंतखाबात का लदम करार देने की दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का गैर हाजिर दरख्वास्त गुजार को आइंदा समात पर पेश करने का हुक्म। चीफ जस्टिस का दरख्वास्त गुजार के पेश ना होने पर इजहार बरहमी। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद अली की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की सदा। ऐसे नहीं चलेगा, हम केस सुनेंगे। सुप्रीम कोर्ट के साथ मजाक नहीं हो सकता। क्या सिर्फ तशहीर के लिए दरख्वास्त दायर की गई? ऐसा करने की इजाज़त नहीं देंगे। दरख्वास्त गुजार ने खुद को फौज का साबिक ब्रिगेडियर जाहिर किया। दरख्वास्त गुजार को कहीं से भी ला कर पेश करें। चीफ जस्टिस का मुतल्लिका थाने के SHO को नोटिस की तामील कराने का हुक्म। केस की मज़ीद समात 21 फरवरी तक मुलतवी। समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। बलोच तलबा बाजियाबी केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को फिर तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आज़म के पेश ना होने पर अदालत बरहम। यहाँ कोई कानून से बालातर नहीं। निगरान वज़ीर आज़म को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो जवाबदा है। आज वज़ीर आज़म होते तो देखते वो किस शहर में बैठते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अदालत आने को अपनी तौहीन ना समझे। आइंदा समात पर कराची ना जाएँ, अदालत आएँ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। क्या लापता 12 तलबा अभी बाजियाब नहीं हुए? जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का इस्तफसार। मेरी मालूमात के मुताबिक 8 तलबा अभी बाजियाब नहीं हुए। अटॉर्नी जनरल का जवाब। IG को बता दें इस्लामाबाद में कोई अगवा हुआ तो FIR IG के खिलाफ होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की तनबीह। केस की मज़ीद समात 28 फरवरी तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे नजम साकिब और बुशरा बीबी की ऑडियो लीक के खिलाफ केस की समात। चेयरमैन PTA, चेयरमैन पेमरा और DG FIA के पेश ना होने पर अदालत बरहम। क्यों ना उन अफसरान के वारंट गिरफ्तारी जारी किए जाएं? अफसरान ने खुद कैसे तय कर लिया वो पेश नहीं हो सकते। जस्टिस बाबर सत्तार के रिमार्क्स। केस की मज़ीद समात मार्च के पहले हफ्ते तक मुलतवी। सेनेट में रेप मुलजमान की सरेआम फांसी से मुतालिक बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद। तहरीक के हक में 14, मुखालिफ में 24 वोट आए। मुस्लिम काफ ने रेप के मुलजमान की सरेआम फांसी बिल की हिमायत कर दी। सऊदी अरब में सरेआम सजाए मौत से जराइम में कमी हुई। सेनेटर कामिल अली आगा का इजहार ख्याल। बिल जमात इस्लामी की जानिब से पेश किया गया। MPhil और PhD के निसाब में कुरान पाक के मुताले को शामिल करने की नज़रसानी की करारदाद मंजूर। फार्मेसी तरमीमी बिल 2023 भी सेनेट से मंजूर।
वफाकी हुकूमत ने इंटेलिजेंस ब्यूरो को अलग डिवीजन का दर्जा दे दिया। IB डिवीजन का दफ्तर काबीना डिवीजन में कायम होगा। काबीना डिवीजन ने IB को डिवीजन का दर्जा देने से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नासिर जावेद राना एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज तैनात। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ग्रेड 21 के जज नासिर जावेद राना की तैनाती 3 साल के लिए डेपुटेशन पर की गई। नासिर जावेद राना 23 जनवरी 2027 तक बतौर जज एहतसाब अदालत नंबर 1 खिदमत सर अंजाम देंगे। जज मोहम्मद बशीर की छुट्टियों के बायस नासिर जावेद राना को एहतसाब अदालत का जज तैनात किया गया। फार्मा कंपनियों को जान बचाने वाली अद्वियात के अलावा दीगर अद्वियात की कीमतों के तयन का इख्तियार मिल गया। नॉन एसेंशियल हज़ारों अद्वियात की कीमतों में इजाफे का इम्कान। वजारत सेहत ने अद्वियात की कीमतें डीरेगुलेट करने का हुक्मनामा जारी कर दिया। फार्मा कंपनियां और इम्पोर्टर्स नॉन एसेंशियल अद्वियात की कीमतें मुकर्रर कर सकेंगे। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतें ड्रेप मुकर्रर करेगी। इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी ने नज़ारे मज़ीद हसीन बना दिए। चित्राल, सबात, दीर में कई फुट बर्फ पड़ चुकी। बालाकोट, चित्राल, दवारी टॉप पर बर्फबारी ने हर शहर सफ़ेद कर दी। बलाई नीलम, वादी लीपा समेत आज़ाद कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी। बेसर सड़कें ब्लॉक हो गई। पाक अफगान सरहदी इलाके में बारिश और यालाबारी, लैंड स्लाइडिंग के बायस शाहराह कराकरम बलोचिस्तान रोंदू के मुकाम पर बंद। दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं। बारिश का सिलसिला 21 फरवरी तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। कुदरती हुसन से मालामाल बाग आज़ाद कश्मीर में विंटर स्पोर्ट फेस्टिवल। 10,000 फुट की बुलंदी पर गंगा चोटी पर स्केटिंग, आइस हॉकी, रस्साकशी, मार्शल आर्ट्स में दीगर मुकामी खेलों के मुकाबले। मुकामी खेलों के साथ सयाहों और दीगर इलाकों से आए नौजवानों ने अपने फ़न के जौहर दिखाए। फेस्टिवल का इनेकाद पाक फौज, महकमा सियाहत, स्पोर्ट्स और सिविल इंतज़ामिया के ताउन से किया गया।